जी दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mwlive.ca पर। आज हम जो बातचीत करने जा रहे प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आप भी ज़रूर अपना इनपुट इस टॉपिक पे ज़रूर दीजिए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि तकरीबन 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उनको बैक टू इंडिया भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कई लोगों ने अपने फ्रस्ट्रेशन भी दिखाए इस बात पर, कई लोगों ने अपने इनपुट भी डाले। कुछ कहते हैं कि ठीक है, अगर उन्होंने गलती की है तो इस गलती का सज़ा ज़रूर देना चाहिए, कनाडा सरकार को उन्हें वापस भेज देना चाहिए। पर इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत का नाता जो है, हमारे इस मुल्क कनाडा में हम लोग इसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या कसूर है, गलती हो गई उनसे तो माफ़ कर देना चाहिए। जो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं उनको यहाँ कनाडा का स्टेटस दे देना चाहिए, परमानेंट स्टेटस मिल जाना चाहिए। आपका क्या विचार है इस पर, हम आज ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इस टॉपिक पे विचार दे सकते। आपका क्या सोच है कि ये जो 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हमारे इस मुल्क में आए हैं कनाडा में, ख़ास तौर से एक स्कूल, एक कॉलेज या एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के बैनर के थ्रू फेक लेटर्स के लिए फेक लेटर्स बना के यहाँ पर पहुँचे हैं, उसमें इन स्टूडेंट्स का कितना दोष है? क्या उन्हें यहाँ रखना चाहिए इस मुल्क में, या फिर आप ये सोचते हैं कि ये स्टूडेंट्स अगर फेक लेटर्स से ही हमारे मुल्क में आए हैं तो आगे चलकर क्या क्या होगा? What is your input to it? मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रही थी, टोरंटो स्टार ने इसे कवर किया था। International students share horror stories of learning the documents to enter Canada were fake years after the fact. Ravjeet Singh says he was floored when he learned that clues had revealed that the college acceptance letter he used to enter Canada was fake. First, they were the wrong start and end dates for the international business management program he planned to take. Then there was the wrong information about the co-op terms, and there was a missing date under the school's letterhead. इस तरह से कई बातें हमें सुनने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स को भी गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, गलत बातें बताए गए, गलत बातों से उन्हें इस मुल्क में लाया गया। आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या विचार है? 604-449-4444 पर आप हमारे साथ ज़रूर शामिल हो सकते हैं। आप हमें ज़रूर अपना विचार दे सकते हैं कि आपके सोच के मुताबिक क्या ये सही था या गलत है। इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर माइग्रेशन यानी परमानेंट रेसिडेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हमारे मुल्क के इमिग्रेशन मिनिस्टर पर ये सवाल तलवार की तरह लटक रही है। आपका क्या सोच है कि व्हाट शुड बी द डिसीजन? अगर जिन लोगों ने नहीं इस बारे में जानकारी ली है तो आप लोगों को ये बता दें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्कैंडल है, outrage amid reports that hundreds of Indian students in Canada could face deportation over bogus admission letters. With an admission letter in hand for a reputable Ontario college, the student from India said he arrived in Canada in 2018 with hopes of a better life. More than 2 years after completing his studies, the 27-year-old international graduate from Punjab says he has now been told that the letter he used to enter Canada was fake and that his immigration dream is likely going to be shattered.
Although the man says he has yet to receive removal order from Canada Border Services Agency, Indian media outlets here and abroad have reported that many international students are facing deportation from Canada to India after their admission letters, procured through the same overseas agency, were found to be not genuine. Just how many students have been caught up in situation is not clear. Some media reports are putting the number at 700, while the Toronto Star has not been able to independently verify that figure and officials are remaining tight-lipped. The situation and the headlines it's garnering are causing a stir in communities here in Canada as well as back in India. Immigration Minister Sean Fraser said immigration and border enforcement officials, along with colleges and universities, have stopped up the effort to strengthen the integrity measures in place to deal with the authenticity of acceptance letters from institutions. Every once in a while, you do see bad actors, particularly from other parts of the world, who are difficult to police from Canada, who seek to take advantage of international students. It's disgusting to see the behavior of some of our promoters around the world, Fraser told a community radio program. With respect to the reports we've seen, we have some work to do to understand precisely what's going on before we can understand what the appropriate solution may be. According to India's media report, the students had all applied for student visas through a consulting company based in Jalandhar that has since been closed down. The fraud came to light when these students applied for permanent residency in Canada, for which the admission offers letters came under scrutiny, reported the Indian Express in an English edition of the story. This education fraud is one of its kind which came to fore in Canada for the first time. Soromro of Migrant Students United, a national advocacy group for international students, said the organization has been in touch with some of the alleged victims through a community contact, and about a dozen have filed a judicial review with the federal court to challenge the removal order. International students are the ones being punished for reasons that are totally out of their control. Investigative journalist Rajinder Singh Taggar, who first broke the story on indianarrative.com, said the issue of the fraudulent admission letters arose when some of the students applied for permanent residence and their documents were flagged. Affected students, many having been here since 2017, have formed various social media groups, and the number of people facing removal is estimated at around 700, all involving the service of the same education agent, he said. The agent was very clever. He did not put his stamp on the visa applications. He made it appear that the students were self-representing, Taggar told the Star. CBSA says your file shows you self-represented and hence go back. Taggar, who's based in Chandigarh, said he did not know how CBSA came to the realization that the admission letters were fake, but many in the community laid the blame on the officials who failed to examine the authenticity of the documents before issuing the students a visa in the first place. They too have responsibilities. These students were immature. They were ignorant about the process of visa application. They did not know that the agent was required to sign the file, he said. I'm very well convinced that these guys had been cheated. They had no fault because they were ignorant and about the procedure and the process of documentation of their visa applications. Taggar said that he had been unable to reach the agent because the company's office in Jalandhar has been closed and the man behind it has vanished. Only licensed lawyers and consultants registered with the College of Immigration and Citizenship Consultants can legally offer immigration advice and service at a fee. Education agents are not licensed in Canada.
Both the Law Society of Ontario and the Consultants College show no records on their websites that the consultant involved in the Indian student's case was a licensed member. The Canada Border Service Agency refused to comment on the allegations against the Indian students, but said there are a number of active investigations into cases of misrepresentation, including those related to study permits. As these are an ongoing investigation, it would be inappropriate to comment further at this time, CBSA spokesperson Rebecca Purdy said in an email. Persons who misrepresent themselves or use fraudulent documentation to seek entry to Canada or to remain in Canada are contravening the Immigration and Refugee Protection Act and risk being removed from Canada. Rajinder Saini, chief editor of the Brampton-based Parvasi Media Group, had two of the affected students on his Punjabi radio program to talk about what has happened. The local community, he says, has been outraged by the proliferation of the unscrupulous education agents who take advantage of prospective students eager to study and work in Canada in order to get a shot at permanent residence here. The issue is that there is mushrooming of these hundreds of cost of fraudulent consultants all over Punjab and Haryana, neighboring students in other parts of the country. They are not licensed. They don't sign any contract, and they take fake fees. They take fees in cash, said Saini. And the CBSA is saying, you are filing your own application, so you're responsible for any mischief. Some of the students looking to study abroad do not qualify for admission and may seek help from unscrupulous consultants to gain entry, and they can equally be at fault, he said. According to the Canadian Bureau for International Education, there were 807,750 international students in Canada at all levels of study last year, up 43% from 5 years ago. India has been the top source country, accounting for 40% of the overall international enrollment, followed by Chinese students at only 12%. The international graduate from Punjab who spoke with the Star on the condition of anonymity because his work permit has been expired since January, and the agency provided him an admission letter from Fanshawe College for his student visa application, and he entered Canada with the document. However, he said agency staff in India then called him upon his arrival in Canada to tell him that he didn't need to go to campus because the school's business management program was full. They refunded his parents the deposit for one semester tuition fee. Instead, he said he scrambled to find a school and was accepted by St. Lawrence College in a similar program. After completing the 16-month diploma program, the man, who now works at a warehouse, said he received 3-year postgraduate work permit in January of 2020. Then last spring, he contacted by the border agency to show up for an interview in their Hamilton office. They showed us that the letter you applied for visa, your very first time, is fraud, recalled the Brampton man, who is part of WhatsApp group with about 100 alleged victims accused of entering Canada by misrepresentation. How did this come after 4 or 5 years? The letter, they say, was fake. He showed it to the immigration when he landed at Toronto Pearson Airport. We are still shocked. We don't know what to do. According to one media report in India, the bogus admission letters were issued in the names of various institutions. Licensed immigration consultant Matthew McDonald, who has worked in public post-secondary institutions, said there are mechanisms in place to verify these documents, and immigration officials do check with school administration to confirm letters of acceptance. It's unfortunate that if these people are being removed when immigration and border officers were not able to previously verify the fraud, said McDonald. It seems cruel to punish those people who also seem to be taken advantage of when the fraudulent documents were not caught. The High Commission of India in Ottawa did not respond to Star's request for any comment.
ये असल कहानी है कि ये जो स्टूडेंट्स है, जलंधर बेस्ड एक कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट कंपनी, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस भरे, लेकिन इस तरह से भरे कि उन्होंने अपना, जो कंसल्टेंट्स थे, अपना नाम, अपना पता, अपना सिग्नेचर नहीं दिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, ये इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स है उन्होंने खुद भरे हैं। और ये जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे जो इन स्टूडेंट्स के लिए ये काम किए थे, वो अपने दफ्तर बंद करके वहां से निकल गया। कुछ स्टूडेंट्स साल 2017 से इस मुल्क में रह रहे हैं, और ये तब पता चला जब इन्होंने परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किए। और जब छानबीन की गई तो फेक लेटर्स जब पता चला कि जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है ही नहीं, उनके नाम से ये इस मुल्क में पहुंचे हैं। फिर छानबीन की गई तो जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया से इस तरह के फेक लेटर्स आए हैं, वो एक ही कंसल्टेंट, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे, उनके ही है। छानबीन जारी है। CBSE कहते हैं कि ये मिसचिफ है, तुम्हारे ओरिजिनल लेटर सही नहीं है, ये गलत तरीके से तुम यहाँ पर आए, और इस बेस पे तुम लोगों को वापस जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो वाकई यहाँ पढ़ना चाहते थे, पढ़ने के लिए आए थे, उनके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि जो बोगस एडमिशन लेटर्स लेकर कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं, चाहे बेशक उनका कोई कसूर नहीं है, दे हैड नो आइडिया, उन्हें भी तब पता चला जब वो परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किए, क्या उन्हें इस मुल्क में रहने की इजाज़त देना चाहिए या नहीं? कई स्टूडेंट्स अपने बुजुर्गों के ज़मीन वगैरह पे कर्जे उठाकर यहाँ पहुँचे हैं। माँ बाप बड़े जो मेहनत से कमाई करके रखे हुए थे, वो सारे पैसे जो है वो लगा दिए थे कि हमारा बेटा भी जाएगा, हमारी बेटी भी जाएगी, जाकर पढ़ेगी अब्रॉड, और वहाँ पर सही इनको तालीम भी मिलेगा और ये शायद वही बस जाएंगे। इस सोच में लोगों को बाहर किए अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए। उन्हें क्या पता था कि ये जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, ये कैश फीस लेकर गलत काम करा रहे हैं। वैसे तो अव्वल तो किसी को कैश फीस देना नहीं चाहिए, और जब भी किसी भी वीज़ा कॉम्प्लिकेशन है किसी भी मुल्क के लिए, तो आपको वकील के थ्रू ये सारे पेपर्स करना चाहिए, क्योंकि वकील के थ्रू जाओगे तो लीगल स्टैंप होगा, लीगल नाम होगा, कल को कोई प्रॉब्लम भी होगा तो वकील विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन ये ABCD जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है। इनको सिर्फ अपने लिए पैसे कैसे बनाना है यही पता होता है, और बहुत सारे इस तरह के लोग यहाँ पहुँच गए हैं जो बोगस फेक लेटर्स के थ्रू आए हैं। जैसा से मैंने पहले ही आपको बताया कि ह्यूमैनिटी कनाडा में लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है, क्या उन्हें बाहर बैक टू इंडिया पहुंचा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका क्या विचार है? 604-449-4444 पे कॉल करके आप दे सकते हो। वी वुड लाइक टू हियर कि ये 700 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे थे, जिनको एक ही इमिग्रेशन ऑफिसर एक ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने धोखा दिया, क्या उन्हें वापस भेज देना चाहिए या नहीं? आप ज़रूर कॉल करके डिस्कस कीजिए, बिकॉज वी डू रियली वांट टू हियर कि आप लोगों का क्या कहना है। कल को सरकार कोई डिसीजन ले लेगा
फिर आप कहेंगे नहीं ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसे होना चाहिए था, सरकार ने क्यों ऐसे कर दिया। तो इसीलिए योर ओपिनियन काउंट्स। 604-449-4444 will be right back after a quick commercial break. सिमरन ਦੇ ਬ੍ਰਾਈਡਸਮੇਡਸ ਦੇ ਸੂਟਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਗੋਟਾ ਪੱਟੀ ਲਟਕਣ ਸਾਰੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਧੂ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਵੰਨਗੀ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜਵਾਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸੰਧੂ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਨ ਹਾਊਸ ਟੇਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੂਟ ਸਮਾ ਕੇ ਗੋਟਾ ਪੱਟੀ ਲੋਟਣ ਲਗਵਾਓ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਦੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 8148 604 573 0332। प्लान इंश्योरेंस को लो लाइफ इंश्योरेंस ते सुपर वीजा इंश्योरेंस दिया बेस्ट ऑप्शंस। एक क्लेम आउन दे सूरत विच ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ BC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ डिजाइन करवाने लिए कॉल करो प्लान इंश्योरेंस दे अमरिंदर नड्डा नु 604-363-2200 604-363-2200 और विजिट planinsurance.ca। ओहो, रात 2 बज गए, भुख नाल ढिड च चूहे दौड़दे ने। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਪੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ले पहले केक ऑर्डर करा, फिर वैनकूवर जावा, वापस सरे आना, फिर तक केक कटन ले देर हो जाना। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਵੇਗਸ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੇਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੋ ਬੇਕ ਸ਼ਾਪ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਕੇਕਸ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 604-503-1353 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਵੈਡਿੰਗ ਕੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਕਸ, ਕੱਪ ਕੇਕਸ, ਪੇਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਕੇਕ ਜਾਰਜ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 1341171A ਐਵਨਿਊ 604-503-1353। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-597-1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ unit number 209-7928-128 street 604-597-1119 idea immigration। घर दा प्लान ते बन गया, टूटियां ते टब कित्थों लेने आ शेरिया। सरदार नॉर्थ अमेरिका दा सब तो बड़ा ते सब तो सोहना शोरूम है HD प्रोडक्ट। ए तो बिना किते होर गल नहीं बननी। कमाओ ए फोन 604-231-9592। हुणे लो सरदार 604-231-9592। अपने ड्रीम हाउस विच बाथरूम अते किचन दी यूनिक लुक वास्ते एक गेड़ा HTA दे शोरूम सिम्पसन अते ब्रिजपोर्ट दे कॉर्नर ते जरूर मारो। कॉल HTA 604-231-9592। सिमर, राज, मीरा, अमर सारे कहंदे चलो हवेली बिस्ट्रो। आज तो हद हो गई। हीरो ने भी कहा शाम नू चलदे आ हवेली बिस्ट्रो।
ये हवेली बिस्ट्रो की है जी? ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ। ਯੂਰ ਨੰਬਰ 35074888 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 6045031266 ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। जी दोस्तों, आप सुन रहे www.mwlive.ca और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं रिफ्लेक्शन बैंक्वेट एंड कन्वेंशन सेंटर। नए और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बना हुआ हॉल, एलिगेंट टॉप क्लास बिग पैटियोज के साथ बहुत खाने के वैरायटीज आप यहाँ से ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन बैंक्वेट एंड कन्वेंशन सेंटर को बुक करने के लिए कांटेक्ट करो 604-618-5114 या विजिट कीजिए 6638 152 A स्ट्रीट सरी। रिफ्लेक्शन बैंक्वेट एंड कन्वेंशन सेंटर। कोई भी पार्टीज बुक करना हो, शादी ब्याह है, किसी भी ओकेशन के लिए हॉल चाहिए, ज़रूर कांटेक्ट करो 604-618-5114। घर बना रहे हो, नया रेनोवेट कर रहे हो, फर्नीचर बदलना चाहते हो तो आज आपको सबसे बेस्ट डील इन लोअर मेनलैंड तकरीबन 70% तक ऑफ देने वाला फर्नीचर डील्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फर्नीचर पर मिल सकता है। बेस्ट चांस है आपके लिए क्वालिटी फर्नीचर, एलिगेंट फर्नीचर बाय करने के लिए। आज ही विजिट कीजिए डायरेक्ट फर्नीचर 13557 77th एवेन्यू सरी। तकरीबन 70% ऑफ आज आप डायरेक्ट फर्नीचर से ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मिस्टर सूरी को कॉल करो 604-572-5553। लोअर मेनलैंड में एक ही अपना रेस्टोरेंट जो 24 घंटे आपके ख्याल करते हैं वो है पायल सेंटर में पायल चाट हाउस, जहां से आप गर्मा गर्म खाने का मज़ा 24 घंटे ले सकते हो। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक गर्मा गर्म पराठे आप यहाँ से ले सकते हो। किसी भी तरह के पराठे के लिए ज़रूर कांटेक्ट करो पायल चाट हाउस। इसके साथ साथ माउथ वाटरिंग वेज या नॉन वेज डिशेस के लिए, गोट करी के लिए ख़ास तौर से मशहूर है पूरे सरी में और लोअर मेनलैंड में पायल चाट हाउस। पायल सेंटर में है पायल चाट हाउस। अगर 100 लोगों के केटरिंग भी करवाना चाहते हो तो आज ही हरनेक जी को कांटेक्ट करो 604-518-7444 या विजिट कीजिए पायल चाट हाउस पायल सेंटर में या कॉल कीजिए 604-596-1990। इसके साथ साथ आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं क्रिमिनल लॉयर गगन नहल। खुदा न खास्ता किसी तरह के क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, थेफ्ट हो या ड्राइविंग ऑफेंसेस या कोई और क्रिमिनल चार्जेस। एक ही नाम याद रखो, क्रिमिनल लॉयर गगन नहल। याद रखिए ये कॉम्प्लिकेटेड 4 प्रोविंस में केसेस, क्रिमिनल केसेस जीत चुके हैं। अल्बर्टा, BC,
मैनिटोबा और ओंटारियो में। आज ही क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल को कांटेक्ट करो 604-527-4769 या विजिट कीजिए 6625 152 A स्ट्रीट सरी में। क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। वापस अपने टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा से आप लोगों को पता है, तकरीबन 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भारत से यहाँ कनाडा में आए हुए हैं, उनके ऊपर एक तलवार लटका है कि दे केम हियर विद बोगस फेक लेटर्स और उन्हें वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। CBSA का कहना है कि इनका जो लेटर है वो गलत है और वो कहते हैं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये खुद अपने आप के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने ये काम किया है वो बड़े चालाक थे। वो अपना नाम, अपना स्टैंप, अपना कुछ नहीं इस्तेमाल किया। आज ऐसा लग रहा है कि ये एप्लीकेशन इंडिविजुअल्स ने भरा, जानबूझकर भरा, कनाडा में आने के लिए भरा, और दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी डिपोर्टेड बैक टू देयर कंट्री। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप बात करते हो तो कई ऐसे केसेस सामने आते हैं कि वो वाकई नादान थे, उन्हें पता नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही सारा काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट उनके पेपर्स भर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सारा कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। कई को तो इतना भी नहीं पता था कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। उनको सिर्फ बताया गया था कि कैश फी ला कर देना है और सारी जिम्मेदारी हम टेक केयर करेंगे। और कहाँ से इनके जो बोगस लेटर्स है वो बनवाए, किड़े कॉलेज, किस तरह से वो क्वालिफाई हुए, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला। दे टोटली डिपेंड किए इस इमिग्रेशन कंसल्टेंट के फेक बातों पर। बात ये भी खुलकर सामने आ रही है कि जब आप इतने बड़े रकम देते हो, पैसे देते हो, तो आप भी ये सोचोगे कि सारा काम उन्होंने करना है, इसीलिए हम पैसे दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और कनाडा में किस तरह से उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा लेकर यहाँ पर पहुँचकर क्या क्या फेस करना पड़ेगा। सो दे एक्चुअली गॉट द कंसल्टेंट टू डू एवरीथिंग, और वीज़ा आया और वीज़ा लेकर वो लोग आ गए। यहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने सही तरह से जांच नहीं की और उन्होंने स्टेम करके स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया अंदर। साल 2017 में आए, साल 2023 में अगर उन्हें बताया जाए कि तुम्हारा बोगस लेटर है या तूने गलत इंफॉर्मेशन देकर आए हो कनाडा में, इस मुल्क में, isn't that strange? कई सवाल हमारे सरकार पर भी बनती है फिर कि हमारे सरकार ने जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बैठाए हुए हैं कुर्सियों पर, क्या उनको काम करने का तरीका नहीं पता? चलो मैं मानती हूँ, एक नज़रअंदाज हो गया, 2 नज़रअंदाज हो गया, 7 नज़रअंदाज हो गए, चलो 100 नज़रअंदाज हो गए, 700 क्या इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग पूरा नहीं दिया जाता है? क्या उनको पूरा पता नहीं है उनका काम कैसे किया जाता है? ये भी सवाल उठ रहा है कनाडा सरकार पर। जहां इस इमिग्रेशन कंसल्टेंट के गलत कारगुजारी सामने आ रहे, वहां हमारे इस मुल्क के इमिग्रेशन ऑफिसर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से इन स्टूडेंट्स को इतने तालाब में यहां आने दिया जिनके बोगस लेटर्स तुम्हें पहले नहीं पता चला। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ क्वेश्चनेबल है। आपने ये सारे सिचुएशन सुने हैं, आपको क्या लगता है? एक ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट होकर ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है। इन स्टूडेंट्स को कनाडा, इस मुल्क में रहना देना चाहिए या उन्हें वापस भेज देना चाहिए? इतनी सारी बातें सुनने के बाद कई लोग खुद मुझे बताए
क्या आशियाना, सम ऑफ द केसेस जेन्युइन है, पता ही नहीं चलता। स्टूडेंट्स इतने इनोसेंट है, उनको मालूम ही नहीं था, उन्हें तो पता भी नहीं है कि कॉलेज की फेक लेटर्स भी लगाए हुए हैं उनके एप्लीकेशन में। उनको पता ही नहीं है जिस कॉलेज के नाम लेकर उन्हें यहाँ भेजा गया है वो कॉलेज है ही नहीं यहाँ, वो एक इमेजिनेशन है, वो कॉलेज है नहीं थे। कई लोग इन बातों को जब सुनते हैं तो गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 18 साल 19 साल, हाउ मच डू दे नो एक बाहर मुल्क के बारे में? उनकी तो अपनी खुशी इतनी होती है कि हम बाहर मुल्क जा रहे पढ़ने के लिए। दे वुड नॉट केयर कि वो पहले पता करे कि वो कॉलेज है भी कनाडा में या नहीं है, उनके साथ धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा। They will be so happy कि they will be flying to another country to get further education. क्या उन्हें वापस भेज देना चाहिए? कई लोग शायद मुझसे अग्री नहीं कर रहे, लेकिन मैं सोचती हूँ इंसानियत के तरीके से अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो इन स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए इस मुल्क में रहने के लिए, जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है ऑलरेडी। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे मुल्क के जो सिस्टम है वो भी सही नहीं है। कनाडा में अगर इमिग्रेशन सिस्टम सही होता तो ये लोगों का वीज़ा कभी यहाँ के लिए स्टैंप ही नहीं होता। तो हमारे मुल्क के सिस्टम गलत होना, सिस्टम के कसूर की वजह से इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्यों सज़ा मिलना चाहिए? What do you think about it? क्या मैं गलत हूं इस बात को सोचकर? 604-449-4444 पे आप जरूर आकर अपना विचार दे सकते हो, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। मेरे ये सोच कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं, लेकिन हमारे मुल्क के इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो इतना वीक है, कमज़ोर है कि हमारे मुल्क में साल 2017 में जो स्टूडेंट्स आए हैं 2023 में उनको जाकर पता चलता है, वो भी जब वो परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब मालूम होता है कि उनका जो एंट्री कनाडा में हुई है वो बोगस फेक लेटर्स की वजह से हुई है। तो ये बताइए कि इमिग्रेशन सिस्टम जो है हमारे मुल्क की स्ट्रॉन्ग है? हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो सही तरह से ट्रेनिंग लेकर अपने कुर्सियों पे बैठे हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इतने लोग यहां पहुंच गए विथ फेक बोगस लेटर्स। तो जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कसूर है वहां पर कनाडा इमिग्रेशन के सिस्टम का भी कसूर है। तो फिर सजा क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देना चाहिए? क्या कनाडा सरकार ये बात कहेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे उनको हमने फायर कर देना? If that's what it is, then let's be fair. प्रोग्राम में आप भी जरूर शामिल हो सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। एरिया कोड 604-449-4444। लेट्स हियर हमारे कॉलर क्या कहना चाहते हैं। मीडिया वेव्स, हेलो मैडम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं एक्चुअली मैडम 4 महीने मैं इंडिया रह के आया जी। हाँ जी। मैं जानी दुआ ले हुणे आया थोड़े दिन हो गए। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀ ਏਜੰਟ ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਨੀ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆ। ਵਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ 3 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ? ਜਾਨੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਬਈ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਾਨੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਜਾਣੇ ਭੇਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਔਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਔਰ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗ ਛੁਪਿਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਗਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ। ठीक है जी शुक्रिया थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। प्रोग्राम में आप भी अपने विचार दे सकते हैं। मैं आप लोगों के विचार को टोकूंगी नहीं क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर क्या कहना चाहते हैं। 604-449-4444 पे आप कॉल कर सकते हो अपने विचार दे सकते हो कि 700 इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे इस मुल्क कनाडा में आए बोगस फेक लेटर्स के थ्रू। आप क्या सोचते हैं क्या उन्हें वापस भेज देना चाहिए? लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर हैज टू से। मीडिया वेव्स हेलो। हेलो जी सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਦ ਕਾਲਜਸ so colleges they should confirm with them or they should provide a list of the people who are permitted to get admission ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ It's very simple. They can just put it in the system. For example, KPU has or any other colleges like from Toronto, Humber College or Ryerson, whatever whichever colleges. Ji. On their website, they should provide a list to the immigration people in India. ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ then you have confirmation instead of ਮੈਂ I know somebody here and he also got the admission here in Toronto right and he went there ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ there is nothing behind
right? And luckily he called me. He said, you know, they are asking for cash. Okay, they cash fees, they owe $15,000. Wow. I told them not to do it, and I told them to, you know, get admission in actual college. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ. They should be charged for fraud. And also ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ CRA ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, that's what I think. I think they should provide a directory to like a list of people who are admitted directly to the visa people, so they can easily confirm it. You know, so and so. But for example, somebody says I got admission in KPU, and all they have to do is look at the KPU list, and if his name is there, date of birth is there, they should also, then they can give him a visa. जी. शुक्रिया जी. एंड आई टोटली एग्री विद द कॉलर, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेजेस है था पे आजकल एक स्ट्रीट में आपको कई कॉलेजेस खुले नज़र आएंगे. कोई मार्वलस है, कोई ये है, कोई फलाना है. हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर इस मुल्क में आते हैं, दे शुड हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ द कॉलेज, और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास एक लिस्ट होना चाहिए कि ये जो कॉलेजेस है दे आर द वंस हु आर ओके टू टेक दीज स्टूडेंट्स, और उनके पास एक लिस्ट होना चाहिए हर कॉलेज के अंदर केड़े स्टूडेंट्स नू एक्सेप्टेंस लेटर दित्ती गई है. And that's the only way immigration officers should be putting a stamp on their passports, on their visas, so that कि ये valid है. लेकिन सवाल ये है कि 700 जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस मुल्क में इस तरह से पहुंच गए हैं, चलो चाहे उनको पता था या नहीं पता था, they were being frauded, they were being told, किसी भी तरह से वो यहाँ पहुंच गए हैं. अब उन्हें बताया जा रहा है कि वो वापस अपने मुल्क जाए, क्योंकि उनकी जो एंट्री थी कनाडा में वो गलत तरीका था. आप क्या सोचते हैं कि इन स्टूडेंट्स को वापस भेज देना चाहिए, जबकि हमारे कैनेडियन सिस्टम के वीकनेस भी है कि हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने अपने काम सही तरह से नहीं किए. हमारे सिस्टम में कमजोरी है जिसके वजह से इस तरह के स्टूडेंट्स को वीजा स्टैंप हो चुका है. Is it fair to send these students back to India? आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? 604-449-4444 पे आप कॉल कर सकते हो और अपने विचार शामिल कर सकते हो प्रोग्राम में, क्योंकि हर एक पर्सन हैज देयर ओन ओपिनियन. और कल को ये स्टूडेंट्स को अगर वापस मुल्क भेज दिया जाएगा तो कई हम में से ये भी कहेंगे कि चलो उनमें से कई जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स थे उनके साथ धोखा हुआ, डबल धोखा हमारे कैनेडियन सिस्टम ने कर दी. They shouldn't have been gone back. या उन्हें यहाँ रहने का मौका मिल जाए तो हम में से सारे कहें कि why did they stay here? They committed fraud entering this country. We all have our own opinions. आप क्या सोचते हो? 604-449-4444 पर आप कॉल कर सकते हो. आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं HTI प्रोडक्ट्स. प्लम्बिंग के किसी भी तरह के आपको कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर HTI प्रोडक्ट्स जाइए. इनके शोरूम्स वैंकूवर, रिचमंड, सरी, हर तरह के ब्रांड नेम, जी हाँ, हाई एंड ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स HTI प्रोडक्ट्स के पास. ज़्यादा जानकारी के लिए साबी औलक को कॉल कीजिए 604-728-5339. इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि किसी भी तरह के किसी भी ओकेशन के लिए आपको केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह चाहिए, इनका जो पता है वो थोड़ा हिडन है, लेकिन मैं कहूँगी ये हिडन जैम है. मान एंड को बेक शॉप एक हिडन जैम है सरी में. इनका पता है 13411 71A एवेन्यू. किसी भी तरह के पेस्ट्रीज या केक्स, कोई भी ओकेशन, वेडिंग केक्स के लिए ये माहिर है. यंग नौजवान मुंडा जजार सिंह, आज ही कांटेक्ट करें इन्हें 604-503-1353. आप एक बार मान एंड को बेक शॉप में जाएंगे, हर एक बेकरी भूल जाओगे.
They make the best cakes and pastries. एक बार जाकर आइएगा ज़रूर, क्योंकि that's when you will know कि आशियाना क्या कह रही है कि कहीं जाओगे। एक बार अगर मान इनको बेक शॉप चले गए ना तो हर एक बेकरी आप भूल जाओगे। एक बार फिर इनका पता है 13411 71A एवेन्यू। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कीजिए 604-503-1353 604-503-1353 मान इनको बेक शॉप। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दोस्तों एरिया कोड 604-449-4444 मीडिया वेव्स। हेलो, सॉरी मैडम, मैं एक फिर आया। नो वरीज, हाँ जी बोलिए। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਾਨੀ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਜੀ ਬਈ ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੈਸ ਕਰਾਓ। और दूसरा ये ਜਿਹੜੀਆਂ LMI है ना ਜਿਹੜੀਆਂ, हेलो मैडम, हाँ जी बोलिए। वो ਜਿਹੜੀਆਂ LMI ਇਹ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ LMI, हाँ जी, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ 2 LMI ਜਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿਕੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ LMI ਨਹੀਂ ਇਹ। ਵਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ। ਵਾਓ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਬਈ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਸਾਤੋਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। और क्यों ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਬਿਲकुल गलत हो रहा है काम, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ लगनी चाहिए पूरी। बिल्कुल, शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। प्रोग्राम में दोस्तों आप भी जरूर शामिल हो सकते हो। 604-449-4444। 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके सर पे तलवार लटकी है कि उन्हें कनाडा के परमानेंट रेसिडेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। CBSE का कहना है कि उनकी जो एंट्री हुई है इस मुल्क में वो गलत तरीका से हुई है, फेक बोगस लेटर्स के साथ, जो कॉलेजेस यहाँ है ही नहीं, जिनका नाम ही नहीं सुना। आपका क्या सोच है कि इन स्टूडेंट्स को वापस भेज देना चाहिए, जबकि हमारे कैनेडियन सिस्टम इमिग्रेशन की भी ढिलाई है? 700 स्टूडेंट किस तरह से वीजा स्टैंप करवा गए अगर हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स सही काम करते? लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर हैज टू से। मीडिया वेव्स, हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं ऑफ एयर गल करनी है। ऑफ द एयर गल करनी है, ठीक है जी, जस्ट स्टे ऑन द लाइन। प्रोग्राम में दोस्तों आप भी जरूर शामिल हो सकते हैं। एरिया कोड 604-449-4444। विल बी राइट बैक आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक। मोरनी वंगा तुरन दा मजा तक गुड डील कार्पेट्स ते फ्लोरिंग ते ही आउंदा। घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਪੈਟਸ, ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਮੀਨੇਟ, ਵਾਈਨਲ ਤੇ ਕਾਰਪੈਟ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 12 7788 132 ਸਟਰੀਟ। ਸੇਲਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ ਸਨੀ ਪਰਮਾਰ 604-505-6462 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਅਰੋੜਾ 604-338-9443। ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ। महफिल मित्रां दी सजदी रोज चवारे, महफिल मित्रां दी
सजदी रोज चवारे महफिल चवारे चलाउणी है जे पूरी गरचा मीट शॉप दे मीट बिना रहनी है जी अधूरी चलो नेड़े दे गरचा मीट शॉप ते जाओ 18 लोकेशन तो मैरीनेट ते ताज़ा मीट लियाओ छुट्टियां च पार्टियां मनाओ खुशियां ते भंगड़े पाओ garchameatshop.com ते करो विजिट ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਕਰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 जॉनसन रोड व्हाइट रॉक फैमिली केयर फार्मेसी। जी दोस्तों आप सुन रहे www.live.ca और जो 700 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्हें CBSE कहते हैं कि वापस अपने मुल्क जाओ क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर गलत तरीके से हुई बोगस चिट्ठियों के साथ हुई है जो कॉलेजेस यहाँ है ही नहीं उनके नाम इस्तेमाल किया गया लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि हमारे कनाडा के इस मुल्क का इमिग्रेशन सिस्टम इट्स अ ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम 700 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा लगे बोगस लेटर्स के साथ क्या इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पता नहीं चला क्या they are not supposed to have a better system to know कि ये स्टूडेंट्स जो लेटर लेकर आ रहे हैं वो कॉलेजेस है भी या नहीं इस मुल्क में I think कि जितना ये स्टूडेंट्स पे फॉल्ट दे रहे हैं उतना हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का भी फॉल्ट है आपका क्या ख्याल है इस बारे में 604-449-4444 लोग मुझे बता रहे हैं कि और भी बहुत इलीगल तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं यहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है इनमें से कौन कौन है जो सही काम कर रहे हैं कौन कौन है जो नहीं है सिर्फ भारत के इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं यहाँ के भी कई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के बारे में बातचीत हो रहे हैं किस तरह से पेपर बनते हैं किस तरह से फिर LMI का इस्तेमाल किया जाता है फिर किस तरह से चेक लिख के कैश करवा के कैश ला कर दिया जाता है एम्प्लॉयर्स को बहुत सारे लोग जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं ख़ास तौर से हमारे नौजवान बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ है उनको किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है वो भी हम सभी को पता है लेकिन ये जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं अपने हाथ उनके सर पे रखे हुए हैं चाहे वो MPs हो MLAs हो ऐसे नहीं चिट्ठियां MPs के ऑफिस से कहा जा रहा है कि $5,000 $10,000 का एक चिट्ठी लिखा जाता है वो चिट्ठी क्यों लिखा जाता है MPs को क्या जरूरत होगी $5,000 $10,000 दे के चिट्ठियां लिखने की कोई नहीं जी इमिग्रेशन मिनिस्टर अपने हाथ में है इमिग्रेशन मिनिस्टर से आज ही बात कर देंगे कोई जरूरत ही नहीं है हमारे मुल्क के जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है इस तरह के MPs के इंटरफियरेंस से अगर फाइल्स उठा के ऊपर रख दिया जाता है या फाइल मूव हो जाता है दैट मीन्स करप्शन अपने मुल्क में बैठे हैं अपने मुल्क में हम लोग करप्शन कर रहे हैं ये किसी को नजर नहीं आ रहा ये कोई जानते नहीं है क्या कि दिस इज ऑल हैपनिंग राइट हियर वेयर वी आर और जो लोग इन MPs को इन MLAs को इनको कहते हैं तो वो लोग गलत हो जाते हैं वो लोगों को गलत बोलना शुरू हो जाते हैं लोग आज कहते हैं कि वो जर्नलिस्ट अटैक किए जा रहे हैं जर्नलिस्ट को अटैक किया जा रहा है हमारे इस मुल्क में अगर कोई सच्चाई के लिए जर्नलिस्ट खड़े होते हैं तो क्या उनको अटैक नहीं किया जाता है हमारे जो मुल्क है उसमें भी बहुत सारे कमजोरियां हैं जो हम लोगों को यहां भी फिक्स करने की जरूरत है लेकिन नहीं
हम लोगों को अच्छा लगता है दूसरों के घर में झांकना ताकना, अपने घर में चाहे जो मर्जी हो। I totally agree। कोई भी एमपी को अगर हम इलेक्ट करते हैं हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे आवाज पार्लियामेंट में गूंजने के लिए, ना कि वो एमपी हमारे लोगों से 5,000 या 10,000 एक चिट्ठी के लिए ले। मैं मानती हूं हम सबको बाहर मुल्कों में जो हमारे अपने हैं, रिलेटिव्स है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। हम भी चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स यहाँ आए, हमारे साथ कुछ वक्त बिताए या यहाँ मूव हो जाए परमानेंटली। वी ऑल वांट टू डू समथिंग फॉर दैम, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गलत तरीका अपनाएं। किसी इमिग्रेशन स्टेटस के लिए किसी को 5,000, 10,000, $20,000 दे, दिस इज रॉन्ग। और ये सिस्टम को जितनी जल्दी बंद कर दिया जाए उतना बेहतर है। बाहर मुल्कों से आपके रिलेटिव जरूरी इस मुल्क में आ सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आप उनकी एप्लीकेशन भेजो और उनको यहां बुलाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब ये एमपीज को जा के पैसे पे कर करके लोगों को यहां पर बुलाते हो, ये गलत है। एमपीज ऐसे नहीं कह देते हैं कि वो गाड़ी खरीद दो मेरे लिए, या ये घड़ी ले लो, या ये ले लो, वो ले लो। अगर ये बात भी होती है तो वो भी करप्शन है। दैट्स रॉन्ग एंड दैट शुड नॉट बी डन। सवाल ये 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है जिनको कहा जा रहा है कि वापस जाओ, अपने मुल्क जाओ वापस, क्योंकि आप लोगों ने गलत तरीके से यहां पर आए। कई लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे। कनाडा इमिग्रेशन का जो खबर है साल 2023 मार्च की, उसमें भी विक्टिम ऑफ फ्रॉड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा फेसिंग रिमूवल ऑर्डर्स की आर्टिकल आई है। कहते several international students in Canada are facing removal orders from the Canadian Immigration Department। ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट्स बड़े सपने लेकर यहां आए थे, सपने लेकर आए थे। और ये उन्हें 3 साल अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद पता चला कि यहां पर उन्हें परमानेंट रेसिडेंस नहीं दिया जाएगा। इन्हीं बच्चों के पैसे हम यहां कॉलेजेस में लगाए हैं और 3 साल के बाद इन्हें बताया जाता है कि यू हैव टू गो बैक। पहले क्यों नहीं बता दिया था तो वो 3 साल अपना यहां जाया नहीं करते। मुझे आज भी याद है जब मेरा बेटा यहां से इंग्लैंड गया था पढ़ने के लिए, मैं उसके साथ गई थी। और जब भी हम एयरपोर्ट में जाकर हिथ्रो एयरपोर्ट में उतरे थे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए, तो इमिग्रेशन कस्टम्स में सबसे पहले हमें यही पूछा गया था, डू यू हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और मेरे बेटे के पास लेटर थी, उसने लेटर दिखाया एंड उसी वक्त वीज़ा पे स्टैम्प किया गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स का ड्यूटी है, फर्ज बनता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज है या नहीं है। सिर्फ आप लोगों को अपना फैट पे चेक की ज़रूरत नहीं होती, काम भी तो करना चाहिए ना। और जब काम नहीं करते दैट मीन्स आवर सिस्टम जो है इमिग्रेशन का वो ब्रोकन है। मैं मानती हूँ ये गलती है जो स्टूडेंट्स यहाँ 700 पहुंचे हैं विद बोगस लेटर्स, लेकिन क्या अपने सिस्टम की गलती नहीं है? इतने साल बाद इन्हें पता चलता है कि फेक लेटर्स के साथ यहाँ आए। डू यू एग्री विथ मी? 604-449-4444 पे कॉल करो जी, अपने ओपिनियन दो। वी वांट टू नो। एक सजेशन बहुत अच्छा आया कि हर एक इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उनके कंप्यूटर में सभी कॉलेजेस का नाम होना चाहिए और जो वो एक्सेप्टेंस लेटर्स देते हैं उन स्टूडेंट्स का नाम भी होना चाहिए, सो दैट दे नो कि एग्जैक्टली ये कॉलेज भी है और इस कॉलेज में ये बंदे के एक्सेप्टेंस भी है। और नहीं है तो उन्हें बैठा दो कमरे में, उनकी छानबीन करो, पता करो, डजंट मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स,
but they should not be getting a stamp on their visas on documents which are not true. तो गलती जो है वो हमारे इमिग्रेशन सिस्टम की ढिलाई भी है, और इसलिए मैं कहती हूँ कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ये जो 700 स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ रहने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए. लेकिन दैट्स माय ओपिनियन. आपका ओपिनियन क्या है? आप अपने ओपिनियन ज़रूर बता सकते हो. जैसा से मैंने कहा कि आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि जो ये खबर है वो कनाडा इमिग्रेशन न्यूज़ मार्च महीने में भी आई है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी कहानी भी बताई है. कहते the removal order letters are being sent since 2021 offering these students to appeal the removal orders. Some of these students are receiving letters now. According to one of the sources, the number of international students facing removal orders is in the multiple of hundreds. Recently, in a similar case of Karamjit Kaur, the federal court upheld the decision by Immigration Division, ordering her to leave Canada. She now only has humanitarian and compassionate consideration of her case left. Ironically, she came to Canada on a study permit in 2018, and her agent in India used the fake letter to get her file processed, which she was unaware of. Karamjit got a removal order in 2022 when she applied for her permanent residency, 4 years after her entry to Canada. However, in February 2023, federal court ruled that it was her responsibility to call the college and confirm whether the offer letter was genuine or not. International students have been protesting against these removal orders and pointing out gaps in the Canadian immigration system. Our letters of GICs or documents are not usually verified by students as they trust their consultants or agents back in India. As per students, if the offer letter or GIC or any document was fake in their study permit application, the Immigration Department should have pointed out it at the time of issuing visa to Canada. IRCC officers in India who are trained and experienced at catching forged documents in an applications were also deceived by the same fake documents. If such officials are unable to detect fake documents, then how a teenager or naive young student would have caught such a scam? Rather, they themselves were victims of this fraud. Moreover, when they landed at a Canadian airport and an immigration check was done, no official were able to point out the forged documents. As in Karamjit Kaur's case, the agent told her after she landed in Canada that he had some dispute with the college authorities, so she would have to change her college. Being new at such a young age in Canada, in such a situation, no one reaches out to college and confirms whether their offer letter is fake or original. Now that these scams are made public, definitely new students will be cautiously confirming all the documents are original or not. But at that time, nobody knew about these frauds. After completing their studies in Canada, international students apply to the Immigration Department for a post-graduation work permit. Even at that point, the Immigration Department didn't point out any inconsistencies and issued them work permit to legally work in Canada. Most of these students are receiving removal orders after 3 or 4 years of coming to Canada at the time they applied for permanent residency under one or another program. The common word used by most people is deportation. Deportation is the permanent ban from re-entering to Canada, and people cannot return unless they apply for authorization to return to Canada. However, most of these international students are facing an exclusion order because of misrepresentation. This means that they are removed from Canada for 5 years. Misrepresentation is defined as
intentional or unintentional misrepresentation or withholding substantial information on a relevant topic that causes or may cause an error in decision making. International students now have the option to appeal the removal orders and the court will decide their fate. खैर, अब भी इस बात को भी कुछ होशियार लोग कैश करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कोई नहीं, इतने पैसे लगेंगे, हम आपका डेपुटेशन ऑर्डर जो है वो रुकवा देंगे। बड़ी बनती है जी इमिग्रेशन ऑफिस मिनिस्टर के साथ। इस तरह के बातों में मत आना, क्योंकि ये जो लोग हैं यही फ्रॉड्स है, यही ये फ्रॉड्स करवाते हैं। टू बिगिन विथ यही लोगों के वजह से आज ये सारा कुछ हुआ है। सो डोंट गेट इनटू देयर हशी मशी वर्ड्स कि कोई नहीं, इतने पैसे और लगेंगे, हम आपको दिलवा देंगे, वीज़ा दिलवा देंगे जी। ये गलत है। डोंट गेट बॉट विद दिस। आपके और पैसे ज़ाय होंगे। अगर कोई भी आपको हेल्प कर सकता है वो है आपके अपना वकील। अगर आपने वकील नहीं हायर किया है, कोई इमिग्रेशन अच्छे से वकील देखकर हायर करो और फिर देखो कि ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पे आपको यहाँ इस देश में रुकने का मौका मिले या ना मिले। लेकिन किसी पर यकीन मत करना आप कि जी फलाना एमपी है जी, उसका बड़ा बनता है, वो करा देंगे, वो ऐसे करा देंगे। ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट इस फलाने एमपी का गुरु है जी, वो करा देगा, $20,000 लगेगा और वो करा देगा। डोंट गेट बॉट विथ दीज स्टोरीज। लीगल सिस्टम, लीगली काम करो और लीगल तरीके से इस मसले को हल करो। लेकिन कनाडा सरकार के इमिग्रेशन इज ब्रोकन और मेरे ख्याल से हर एक को ये बात सवाल करना चाहिए कनाडा इमिग्रेशन ऑफिसर से या कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर से। ये सवाल करना चाहिए कि आप लोग कहते हो कि 18-19 साल बच्चे के पास अकल होना चाहिए कि लेटर फेक है या नहीं है। आपके इमिग्रेशन ऑफिसर कितने उम्र का था जिन्होंने ये फेक लेटर में देखकर वीज़ा स्टैम्प किया? ये सवाल पूछना बनता है और पूछना भी चाहिए। खैर दोस्तों, वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। कुछ भी अगर आपने कहना है 604-449-4444 इस इशू पर आप गलबात कर सकते हो। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्शुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज बारे सुनते हाँ। कई बारी गऊमार हो जाती है। चालबाज लोग साऊ बंदे नूं फसा दिंदे ने ते नाले क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिंदे ने। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हो तो नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंजलदार केसेस जित्ते हन, क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। आज ही करो कॉल क्रिमिनल केस जितण दे विच माहर वकील गगन नाहल नूं 604-527-4769 6625152 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. हेलो, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 778-880-2345 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada.
ਭਰਜਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਗਰਵਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਹੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਮੁਰੱਬੇ, ਸਨੈਕਸ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਪਤੀਲੇ, ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਰਤਨ। ਜੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਗਿਫਟ ਵੀ ਨੇ। 12787 78th Avenue, Surrey, 604-629-5333। हॉर्न बनी ना गल अग्रवाल ग्रोसरी हब। जी दोस्तों, आप सुन रहे www.mwlive.ca। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे SNS ज्वेलर्स। जी हाँ, वेल नोन अपनी कम्युनिटी के मुल्लापुर वाले महंगा सिंह सराफ द BC में एक दुकान SSS ज्वेलर्स, SNS ज्वेलर्स। खानदानी ज्वेलरी के लिए, ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए, मॉडर्न ज्वेलरी के लिए, डायमंड ज्वेलरी के लिए एक ही नाम है। बेस्ट ट्रेडिंग वैल्यू देते हैं SNS ज्वेलर्स। 9269 120th स्ट्रीट, स्कॉट रोड, डेल्टा की तरफ है SNS ज्वेलर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कीजिए 604-582-5849 SNS ज्वेलर्स। एक बार फिर आप सभी को ये बता दें कि डायरेक्ट फर्नीचर पर 70% तक ऑफ का फ़ायदा आप ले सकते हो। किसी भी कमरे के लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, घर बना रहे हो, नए फर्नीचर चाहिए, रेनोवेट कर रहे हो, फर्नीचर बदलना चाहते हो, तो एक ही नाम याद रखो, तकरीबन 70% ऑफ आप ले सकते हो डायरेक्ट फर्नीचर से। डायरेक्ट ही पहुंचो जी 13557 77th Avenue सरी में, या फ़ोन करो 604-572-5553। डायरेक्ट फर्नीचर अप टू 70% ऑफ। आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजकल मौसम बदल गए हैं, खूबसूरत धूप निकली हुई मौसम। ऐसे मौसम में बाहर पैटियों में बैठकर बारबेक्यू करके और स्वाद लेने का वक्त है। ऐसे में ऑलरेडी मैरिनेटेड मीट्स लेकर आइए गर्चा ब्रदर्स मीट शॉप के किसी भी लोकेशन से। मैरिनेटेड या नॉन मैरिनेटेड मीट चाहिए, गर्चा ब्रदर्स मीट शॉप, इनकी कोई भी लोकेशन पर जाइए, क्योंकि दे हैव द बेस्ट मैरिनेटेड मीट। याद रखो, मसालेदार मीट आपके लिए तैयार, और सिर्फ ले जाकर बारबेक्यू पर रख के आपने लुत्फ उठाना हो लजीज खानबान के, तो गर्चा ब्रदर्स मीट शॉप के किसी भी लोकेशन पर विजिट कीजिए। आप वेबसाइट पे जाइए garchameatshop.com पर, और आपके नियरेस्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 604-592-2951 604-592-2951। रेडी टू ईट फिश पकौड़ा, चिकन टिक्का, वेजिटेरियन चॉइसेस भी इनके पास है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो कई किस्म के वेजिटेरियन मैरिनेटेड आप यहाँ से ले सकते हो, रेडी टू कुक। गर्चा ब्रदर्स मीट शॉप आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca पर। 700 स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भारत से यहाँ पर आए हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि दे शुड गो बैक टू देयर कंट्री, क्योंकि उनके जो वीज़ा स्टैंप हुआ है बोगस फेक लेटर्स पर स्टैंप हुआ है। किसकी जिम्मेदारी थी, ये क्वेश्चनेबल है। कई लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए था। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि फेक लेटर्स जब उन्हें उनके फाइल के साथ अटैच किया था, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का पता करना चाहिए था। मैं भी मानती हूँ कि पता करना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि एक बच्चा अपनी पढ़ाई दूसरे मुल्क में जाकर कंप्लीट करने के बारे में जब सोच रहा है, एक्साइटमेंट इतनी होती है कि उन्हें फेक या सही लेटर का कहाँ फिक्र होता है। वो कहते हैं इतने बड़े रकम दिए हैं इन कंसल्टेंट्स को, तो इनको तो अपना काम करना पता होना चाहिए ना कि सही कर रहे या नहीं कर रहे। और आंखें बंद करके उन पर यकीन किए गए कुछ स्टूडेंट्स आज शिकार हुए। किसकी फॉल्ट है? हर कोई ये बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स इस मुल्क में आ गए, फेक लेटर, बोगस लेटर, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने भी उन्हें स्टैम्प कर दिए। ये नहीं देखा कि सही है कि गलत है।
फिर ये स्टूडेंट्स क्यों ही सिर्फ बदनाम होना चाहिए? हमारे इमिग्रेशन सिस्टम को कौन बदनाम करेगा? कौन उनसे पूछेगा कि तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम है? हाउ कम यू गाइज डिड नॉट look at these documents? Why was these documents overlooked? 5 साल लगे, 4 साल लगे आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करना। ये जो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल नहीं पता था इन बातों को, जो सच्चाई कह रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं थी कुछ भी पता, डोंट यू थिंक कि उनको ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पर यहाँ पर रहने का मौका देना चाहिए? और अगर उन्हें वापस भेज रहे हैं तो हमारे जो सो कॉल्ड इमिग्रेशन ऑफिसर्स है, जिनकी जिम्मेदारी है ये काम देखने का, क्योंकि वो तनख्वाह लेते हैं, सरकारी तनख्वाह लेते हैं, तो उनके का क्या सलूक होगा? What's going to happen to them? Are they going to be fired? क्या कारगुजारी होगी उनके साथ? और ये जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, इनके आगे पीछे भी चेक करना चाहिए कि इनके हमारे कनाडा के मुल्क के कौन से पॉलिटिशियंस के साथ संबंध है। ऐसे लोग नहीं हमें बता रहे कि $5,000 $10,000 चिट्ठियों के लिए लिया जाता है, पॉलिटिशियन के दफ्तर वाले लेते हैं, लेकिन हम खामोश क्यों हैं? जहां पर हमें बोलना चाहिए हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? और जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज दबाने की भी कोशिश होती है। मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, कई लोगों ने बड़े आवाज उठाए कि जर्नलिस्ट को ये कर रहे, जर्नलिस्ट को वो कर रहे हैं, रिपोर्टर्स के साथ ये सलूक हो रहे हैं। और जहां पर हम सच्ची जो स्टोरी आगे फैक्ट्स के साथ रखते हैं, हमारे इस मुल्क में उसे कितना ज्यादा सुना जाता है। कौन इस मुल्क में ये सारी बातें देखते हैं? हमारे अपने यहां प्रोविंशियल सरकार को ही देख लो। एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पिक्स के बारे में हम जो बातें करते हैं, हमें कोई सवालों का जवाब नहीं मिलता। लेकिन ये पिक्स का जो सीईओ है सतबीर चीमा, हर एक गाला में पहुंचा होता है। पिछले हफ्ते कहते 2 गालस यहां हुए हैं, वो वहां पे जी $400 का टिकट होता है, वो खरीद कर वहां जाकर बैठे होते हैं। ये पैसे भरता कौन है? Who buys this tickets? क्या ये पिक्स वालों का डोनेशन से इस्तेमाल किया जाता है? ये सवाल पूछ कर प्रोविंशियल सरकार से थक गए, लेकिन प्रोविंशियल सरकार भी इतना ही ढीठ बैठे हुए हैं कि इन चीजों को नोटिस ही नहीं कर रहे। इसी तरह से जब अपने मुल्क के सिस्टम बदनाम है, व्हाई आर वी सेइंग कि इन स्टूडेंट्स को वापस भेज देना चाहिए? हमें अपने भी इर्द गिर्द देखना चाहिए इस मुल्क में कितना करप्शन हो रहा है, थैंक्स टू आवर MPs, MLAs। लेकिन आवाज कौन उठाता है इस बारे में? डज एनीबडी टॉक अबाउट इट? शरेआम यहां करप्शन दिखे नजर आते हैं, लेकिन जो बात करते हैं उनके धमकियां मिलती है, उनका आवाज बंद करना है, ये करना है, फलाना करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इस तरह की हरकत अपने मुल्क में है, हमारे मुल्क के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने नजरअंदाज किए ये सारी बातें, तो व्हाई आर वी ओनली ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स? जरा गौर से सोचो इन बातों को। मैं मानती हूं गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि जाली चिट्ठियां लेकर यहां पहुंच गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नहीं पहुंचना चाहिए था। स्टूडेंट्स की अपनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, रिसर्च करना चाहिए था, पता करना चाहिए था। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी देखो, अगर स्टूडेंट्स को एकदम से पता चले कि आपको बाहर मुल्क जाने के लिए वीजा लग जाएगा, तो उनकी एक एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होती है, तो वो तो खुद नहीं पता करेंगे, वो कहेंगे जिनको पैसे दिए वही करके देंगे हमें। वो तो अपनी तैयारी में लग जाते हैं स्टूडेंट्स। और यहां पर आकर जब ये सारी बातें खुलकर सामने आते हैं, तो व्हाई डज these स्टूडेंट्स ओनली हैव टू सफर? इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर जिन्होंने स्टैंप किया था पासपोर्ट पे, उनकी भी गलतियां हैं।
हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम की गलतियां सबसे पहले। क्यों नहीं उनको पता होना चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर स्टडी वीजा लेकर आ रहे हैं वो कॉलेजेस है भी इस मुल्क में या नहीं है। हर नुक्कड़ पे देखो, कोई ए, कोई बी, कोई सी इमिग्रेशन कंसल्टेंट फर्म खोलकर बैठे हुए ते नाल हर एक स्ट्रीट पर एक कॉलेज का बोर्ड आपको नजर आएगा। इन कॉलेजेस में हो क्या रहा है? अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई क्रेडिट्स भी यहाँ इन कॉलेजेस की है कि नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है यह सब कुछ करना? If our system is broken, why are we punishing those innocent international students जिनसे गलतियां हो गई, जो मानते हैं उनकी गलती हुई है? They're accepting it. They're apologizing for it. ये बहुत सेंसिटिव मैटर है दोस्तों, जरूर इस बारे में बात करो। Talk about this. खैर, इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं पायल चाट हाउस। पायल चाट हाउस जो 24 घंटे खुले हैं पायल सेंटर में, सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान यहाँ पर आप हर तरह के पराठे ले सकते हैं। वेजिटेबल या नॉन वेजिटेबल माउथ वाटरिंग फूड तैयार किए हुए पायल चाट हाउस से आप ले सकते हो। पूरे लोअर मेनलैंड में बेस्ट गोट करी खाना हो तो पायल चाट हाउस पायल बिजनेस सेंटर में पहुंचिए। 100 लोगों की केटरिंग भी करवाना हो तो हरनेक जी को कॉल कीजिए 604-518-7444। पायल चाट हाउस के माउथ वाटरिंग फूड खाने के लिए कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो पायल चाट हाउस पे कॉल कीजिए 604-596-1990 604-596-1990। साथ साथ आपको ये बता दें कि आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया है, क्रिमिनली चार्ज हो चुके हो, बेस्ट क्रिमिनल डिफेंस लॉयर गगन नाहल को आज ही कांटेक्ट कीजिए। सेक्सुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस या ऐसा कोई क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं, बेझिझक फोन उठाओ और कॉल करो डिफेंस लॉयर, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर गगन नाहल को 604-527-4769 या विजिट कीजिए 6625 152 A स्ट्रीट सरी। बेस्ट क्रिमिनल लॉयर सरी में जो आपको केस जीता कर देते हैं बेस्ट रेट्स के लिए डिफेंस लॉयर गगन नाहल को जरूर याद रखो। इसके साथ साथ अगर घर रेनोवेट कर रहे हो, नए तरीके के नए हाई एंड ब्रांड नेम किसी भी प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो आज ही विजिट करो HTA प्रोडक्ट्स पर। आप यहाँ से बाथरूम के हर एक प्लम्बिंग पाइप, टूटियां वगैरह ले सकते हो। किचन के लिए आज ही विजिट कीजिए इनके शोरूम वैंकूवर, रिचमंड या सरी। ज्यादा जानकारी के लिए साबी औलक 604-728-5339। इसके साथ साथ ये बता दें आपको कि मान इनको बेक शॉप हिडन जैम है सरी में। इनका पता जो है वो हिडन है, लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। और आई नो यू विल प्रेज मी कि आपने हमें एड्रेस दिया था 1341171 A एवेन्यू सरी में हिडन जैम है मान एंड खो बेक शॉप। यंग बेकर है जुजार सिंह। आज ही इन्हें कॉल करो 604-503-1353। किसी भी ओकेशन के लिए केक्स एंड पेस्ट्रीज चाहिए, ये माहिर है वेडिंग केक्स के लिए, बर्थडे केक्स के लिए। आज ही कांटेक्ट करो या विजिट करो 1341171 A एवेन्यू या 604-503-1353 604-503-1353। अब सुन रहे हैं दोस्तों www.mwlive.ca। 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने बोगस फेक लेटर्स इस्तेमाल करके इस मुल्क में पहुंचे। कहानी यही खत्म नहीं होती, इसमें और भी बहुत कुछ है। हाँ, ये 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जरूर डिपोर्ट करना चाहिए था कि उनके एंट्री पर हमारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है उनको पता चल जाता कि ये फेक लेटर्स लेकर
हमारे मुल्क में घुसना चाहते हैं, then they are deported. We should have no issues कि हमारे मुल्क के सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन स्टूडेंट्स को घुसने नहीं दिए. We would have been proud of our immigration system. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इस मुल्क में ये 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहुंचे साल 2017 में, 18 में, 19 में, और हमारे इमिग्रेशन इतना वीक सिस्टम है इस मुल्क कनाडा का कि जब ये स्टूडेंट्स परमानेंट रेसिडेंस एप्लीकेशन भेजे तब इनको पता चला कि ये जो कॉलेजेस है ये फेक है. ये कॉलेजेस तो यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते. और तब हमारे इमिग्रेशन सिस्टम कहते हैं कि जाओ जी वापस जाओ, आपने गलत तरीके से एंट्री की कनाडा में. लेकिन याद रखो, डिपोटेशन करते हैं तो फिर डिपोटेशन के लिए आप इस मुल्क में वापस नहीं आ सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई ऑथराइजेशन दी जाती है. लेकिन इनको ये 700 स्टूडेंट्स को कह रहे मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्हें वापस मुल्क भेज दिया जाएगा, जिसके अंदर ये है कि 5 साल के बाद ये लोग दोबारा इस मुल्क में आ सकेंगे. क्या ये सही है, फेयर है? हमारे मुल्क के इमिग्रेशन सिस्टम को हमें ब्लेम करना भी चाहिए. जब ये बच्चे ब्लेम हो रहे हैं तो हमारे सिस्टम तो नहीं कुछ सही काम किए, उनको क्यों नहीं ब्लेम किया जा रहा है? खैर दोस्तों, वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद. ਕਿਹੜਾ ABC ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦੀ ਵੈਜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਜੀ ਗਾਰਡਨ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ. 100% ਰੈਨਟ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. 2 ਨੂਡਲਸ ਜਾਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਲਓ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਫ੍ਰੀ. ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਰਾਈਸ ਜੀਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫ੍ਰੀ. ਨਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਦੂ ਹਨੀ ਚਿਲੀ ਪੋਟੈਟੋਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਫ੍ਰੀ. ਵੈਜੀ ਗਾਰਡਨ ਪੀਜ਼ਾ, ਯੂਰ ਨੰਬਰ 103 8383 128 Street, 604-507-3007. Veggie Garden Pizza. सिमरन दे ब्राइड्समेड्स दे सूट्स देखिया सी. ओ माय गॉड, गोटा पट्टी लटकन सारे मैचिंग सी. जरूर विआह तो पहले इंडिया दे गेड़े लाए होने ने. मैं भी यही सोचती सी, पर सिमरन दी माम ने दस्या कि सारा कुछ संधू क्लॉथ हाउस वालियां ने कीता. शौक दा मुੱਲ नहीं हुंदा. शौक पूरे करने ते हर रंग वनगी शेड च विआह शादी दे हर खुशी दे मौके दे लई ढुकमा पहरावा लैण लई लाजवाब कपड़े दे स्टोर संधू क्लॉथ हाउस वाल पहुंचो. इन हाउस टेलर है, उत्तों ही खरीद के सूट समा के गोटा पट्टी लोटन लगवाओ. विआह शादी दा समान लो, हुणी दी आ जाण दी लोड़ नहीं. संधू क्लॉथ हाउस ते जाओ. पायल बिजनेस सेंटर विखे 8148 604 573 0332. ले पहले केक ऑर्डर करा, फिर वैनकूवर जावा, वापस सरे आना, फिर तक केक कटन ले देर हो जाना. ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ. ਵੇਗਸ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੇਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੋ ਬੇਕ ਸ਼ਾਪ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਕੇਕਸ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. 604 503 1353 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ. ਵੈਡਿੰਗ ਕੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕੇਕਸ, ਕੱਪ ਕੇਕਸ, ਪੇਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਕੇਕ ਜਾਰਜ. ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 1341171A Avenue, 604-503-1353. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ. BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ. ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ unit number 209-7928 128 Street, 604-597-1119. Idea Immigration. सिमर, राज, मीरा, अमर सारे कहंदे चलो हवेली बिस्ट्रो. आज तो हद हो गई. हीरो ने भी कहा शाम नू चलदे आ हवेली बिस्ट्रो.
ये हवेली बिस्ट्रो की है जी? ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ। ਯੂਰ ਨੰਬਰ 35074888 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 6045031266 ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford, Anchor Mortgage, Canada। जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca और आज हम बातचीत कर रहे हैं जो 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैनेडियन सरकार कह रहे हैं, CBSE कह रहे हैं कि आप गलत डॉक्यूमेंट्स बना के इस मुल्क में आए हो, इसलिए यू हैव टू बी डिपोर्टेड, यू हैव टू गो बैक। क्या ये सही है? जबकि हमारे इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो भी ब्रोकन है। हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी नहीं पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक है। फिर सिर्फ सज़ा उन 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्यों दिया जा रहा है? ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। कहते हैं, हाउ स्टडी वीज़ा फ्रॉड शैटर्ड द कैनेडियन ड्रीम। An immigration consultant who facilitated fake admission letters. Students from Punjab who ended up in colleges they had not signed up for and are now facing deportation. The Canadian scandal shows the pitfalls of chasing dreams mindlessly and the loopholes that allow illegalities. The great Canadian dream has turned into a nightmare for many. And the man responsible for this is on the run. Search is on to nab Brijesh Mishra, immigration consultant and partner at Education Migration Services in Jalandhar, who has been named in various FIRs for issuing fake admission letters to students applying for various courses in Canadian colleges. In a one of its kind case, that migration consultants not only succeeded in befooling hundreds of students, but also visa officials as well as the Canadian Border Services agencies. It is, however, the students who are paying a heavy price, as a number of them have been issued exclusive orders for misrepresentation. The Letter of Acceptance Verification Project was launched in February 2018 by the Immigration, Refugees and Citizenship Canada to verify the authenticity and validity of letters of acceptance sent by Canadian educational institutions. In case of suspected non-compliance, the information is added to an individual's file and may be taken into consideration on any subsequent immigration application. Of the 24,000 cases of students examined under the project, more than 3,000 were flagged by the CBSA for having submitted fake admission letters to enter the country. Even as the first exclusion orders started being issued nearly 2 years back, hundreds of students are on the verge of being deported to India. Besides exclusion, adverse findings from LOA verifications can lead to being barred from applying for permanent residency for 5 years. While officials of the IRCC and CBSA have expressed inability to confirm the number of students under scrutiny due to privacy legislation, the buzz is the number could be more than initially reported, 700. The students, mostly from Punjab, are now fighting a lone battle trying to prove their innocence. Chamandeep Singh of Mathewal village near Amritsar had applied for admission to Humber College in Toronto in 2018 through Brijesh Mishra, who got him admission offer letter from the college. It was then smooth sailing, with the visa coming in a matter of days. At the port of entry too, the CBSA approved his study permit. It was
only after he entered the country that he was informed by the agent that the college could not hold his seat and he would have to take admission in some other college. Since his study permit didn't mention any specific college, he took admission in a Montreal college and completed his course without suspecting that any fraud had been committed. It was then, when he applied for PR, that his file was flagged for having submitted fake documents on entry to the country. Inderpreet Singh Aulak of Chatiwand village near Amritsar, Ramanjit Kaur from Ablu Kotli village near Batinda, Ranbir Singh of Gurdaspur, Ravi Singh of New Delhi, Rajandeep Kaur of Malerkotla, all the students and many more narrate a similar story. None of them suspected any foul play and didn't question the immigration consultant when he told them of their college expressing unavailability of seats. Despite having issued them admission letters, they had paid the agent 15 to 20 lakh crore rupees each to reach Canada, and now they couldn't let their parents' hard-earned money go down the drain. None of them reported the matter to the authorities. They simply took admission in other colleges, some of which had been recommended by the agent. While others chose to explore their own options, by the time they came to know of the fraud, it was too late. Most of the students have already been issued exclusion orders, while a judicial review of others has been dismissed in the federal court. Clinging on to hope, a few of them have applied for the last resort for the temporary resident permit. This will get their permission to stay for a little more time before they are deported from the country for misrepresentation. Not even in the wildest of our dreams had we imagined that we would become victims of such a fraud, say the students who have been pleading innocence. The authorities, however, point out that all the documents had been filled and signed by the students themselves. Misrepresentation is a very serious offense under the Immigration Act, and the students have a bleak chance of succeeding. An exception arises where the applicants can show that they honestly and reasonably believe that they were not withholding material information. Here, the immigration agent mischievously got all the documents signed by the students. The onus thus lies entirely on the students, says Jaswant Mangat, a senior immigration lawyer who has been handling case of close to 40 students at various stages. So far, there is 100% rejection rate. The government's position is that if we allow these students to stay here, we will be giving an invitation to the world to come here on fraudulent documents. The students are victims of a fraud. They trusted a wrong person. This, however, is not the fault of students alone. It was a failure of duty at many ends. Had the visa officers looked at the documents carefully when the students had submitted those, this problem would not have arisen in the first place. The same document is submitted at the port of entry where CBSA issues study permit to the students. However, once the student has been issued the visa, the CBSA doesn't much care which college the students have been admitted to, and it stamps the study permit with any designated learning institution. While the student is free to study in any Canadian college, it takes away a major safeguard. This immigration agent took advantage of this and told all affected students not to go to the college that had given the admission offer letter as the seats were full. While the students should have verified the credentials and offer letters directly with the college, it is also the responsibility of the Indian government that such unscrupulous agents are punished and prosecuted, says Mangat. The processing of visa has been raising eyebrows as some of the students were issued visas in less than 2 weeks, a process that usually takes a month, and many relevant documents have to be in place. Questions are also being raised over the nexus between the public and private institutions in Canada. There are 24 government or public colleges in Ontario which
The Greater Toronto area alone has 6 public colleges. Besides this, there are hundreds of private career colleges and offers small courses also offered by public colleges. It is an open secret that international students are filling up the offers of public colleges. Public colleges charge 3 times the fee from international students compared to the domestic ones. For a course that domestic students are charged $450, $500, international students have to pay $1,500, $2,000. By the end of 2022, there were 807,750 international students holding valid study permits, with the maximum numbers being from India, followed by China. According to data released by the IRCC, with 22,650 students, India became the top source of new international students entering Canada in 2022. A college professor at one of the public colleges, on condition of anonymity, says there's a way bigger issue staring at our faces. सवाल ये है कि इन 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या वापस भेज देना चाहिए? गलती सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती हमारे मुल्क के इमिग्रेशन सिस्टम की भी है, हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स की भी है। तो सजा क्यों सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जब उन्हें वापस भेजा जाएगा तो हमारे मुल्क कनाडा के जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो ब्रोकन है। जिस ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स चेक करके वीज़ा स्टैम्प किया था, क्या उन्हें भी फायर कर दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल इस तरह के उठ रहे हैं। आज हमने अपने लिसनर्स को ये मौका दिया था कि वो आवाज़ उठाए, देखे, पूछे, समझे। और एक बात और खुलकर सामने आई कि 2 हफ्तों में इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा लग जाता है। हालांकि इमिग्रेशन के लिए लोगों को बड़े चक्करे काटना पड़ता है, महीना महीना न लग जाता है। क्या इनके कोई जान पहचान थे कंसल्टेंट्स की जो इमिग्रेशन के फाइल्स को ऊपर नीचे कर रहे थे? और भी ऐसे बहुत सारे बातें खुलकर सामने आएंगे। सुनते रहिए www.mwlive.ca। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, साथ जरूर देते रहिए। Until next time, goodbye and be safe.